Namaskar student, welcome again our online classes. Today I am explaining chapter number 1 question answers from class 8 how, when and where. Many students are asking that they are not able to understand the question answers, so I am explaining again this. So first question, this question answer is according to your NCERT book. After that we will explain the extra question answers also. First question is true and false. Uh, James Mill divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and Christians. This is the false answer. James Mill divided Indian history into the three periods. The answer is false. Next, B is official document help us understand what the people of the country think. Official documents does not tell about the ordinary people. So this statement is false. Next is the British thought survey were important for the efficient administrative. ब्रिटिश के अकॉर्डिंग सर्वे जो है बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. So these are the true and false. Now next question is what is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offer? Answer is James Mill divided his book into three periods, namely Hindu, Muslim and British. According to his periodized version of the Indian history, according to the periodized version of Indian history, the British rule represent all the forces of the progress and civilization, while the period before British rule represent darkness, ignorance, despotism, religious intolerance, caste taboos, superstitious practices, etc. देखिए यहाँ पे जेम्स मिल की बात हो रही है. उन्होंने थ्री पार्ट में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ये हम पहले कर चुके हैं. इसके अकॉर्डिंग जो इंडियन हिस्ट्री थी, इसके अकॉर्डिंग जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, तो कई सारे जो सिविलाइजेशंस यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रही है, तो जो ब्रिटिश रूल से पहले का जो रूल था इंडिया में, उसे उन्होंने डार्कनेस यानी कि अंधेरा, इग्नोरेंस, डिपोटिज्म, रिलीजियस इग्नोरेंस, कास्ट, यानी उन्होंने कहा कि ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडियंस थे वो इतने डेवलप नहीं थे. द व्यू of Mill has several problem which is not acceptable due to reason. लेकिन उन्होंने पूरी इंडियन हिस्ट्री को सिर्फ थ्री पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी जिसे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. उसके कई सारे रीज़न रहे. फर्स्ट इज़ अ वेराइटी ऑफ फेथ apart from the Hinduism and Islam existed in the period categorized as Hindu Muslim by Mill. अब देखिए यहाँ पे दो ही कास्ट के बारे में बात की जेम्स मिल ने, हिंदू एंड मुस्लिम. तो क्या हिंदू एंड मुस्लिम के अलावा कोई और कास्ट नहीं थी, या कोई और फेथ नहीं था, या कोई और रिलीजियस नहीं था? तो उन सबको उसने इग्नोर किया. नेक्स्ट इज़ all rulers in the ancient India did not share the same faith. अब जितने भी रूलर्स हुए, चाहे वो जेम्स मिल ने सिर्फ दो तरह के रूलर्स की बात की, हिंदू एंड मुस्लिम, लेकिन इसके अलावा जितने भी एंशियंट रूलर्स हुए, राजा हुए, उनका सेम फेथ नहीं था. ज़रूरी नहीं थे वो हिंदू थे, ज़रूरी नहीं थे वो मुस्लिम थे. कहीं और भी हुए, जैसे सिख कम्युनिटी से ले लो, मराठा ले लो, कई सारे थे जिनका उन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी कोई मेंशंस नहीं किया. Third is, it is this country from where two other religions like Buddhism and Jainism developed and the spread to the other part of the world.
while Hindu religious also existed. अब कंट्री में कई सारे रिलीजियस और थे, जिसमें एग्जाम्पल्स हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, जो बहुत डेवलप्ड भी थे और बहुत अलग अलग जो वर्ड है उसके पार्ट में वो स्प्रेड भी थे, फैले हुए भी थे, जिनका इसने कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं किया. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रही जो पीरियोडाइजेशन किया किसने, जेम्स मिल ने, उसमें. Now question number 3, why did the British preserve official document? किस तरह से ब्रिटिश ने official document preserve किए? The answer is the British preserved the important official document because these served as a record of what the official taught, what they were interested in and what they wished for अकॉर्डिंग टू दिस ब्रिटिश राइटिंग. अब देखिए जो ब्रिटिश रिकॉर्ड जो है डॉक्यूमेंट प्रिजर्व किए गए, रिकॉर्ड किए गए, वो इसलिए भी किए गए कि ताकि उनसे सीखा जा सके. दूसरा कि उन्होंने ये चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की कि उनका किस में इंटरेस्ट है, ब्रिटिश का किस में इंटरेस्ट है. अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश राइटिंग कैन बी यूटिलाइज for the reference at the much later period whenever required for studying and the debating. और in future कभी भी ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स को अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ी या फिर उसका कोई यूटिलाइजेशन हुआ तो उसे प्रिजर्व करके रखा गया ताकि इन फ्यूचर में लोग उसे पढ़ सकें और उस पर डिबेट हो सके. These can also serve as an information or proof of any decision or actions taken earlier on some matter. और ये भी चीज़ें थी जो इन्फॉर्मेशंस थी, जो भी प्रूफ थे और कोई भी डिसीजन लिया गया उसका जो प्रूफ थे उसके लिए भी उनको प्रिजर्व करके रखा गया. So that's why the British preserve the official document. Now question number 4, how will the information historian get from the old newspaper be different from that found in the political reports? अब हम यहाँ पे बात करें कि जो इंफॉर्मेशंस जो हिस्टोरियन ने की वो न्यूज़पेपर में अलग थी और पुलिस रिपोर्ट में अलग अलग क्यों थी. पुलिस रिपोर्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल थी, यानी कि पूरी तरह से सही नहीं थी. व्हाट द ब्रिटिश थिंक दे राइट, जो ब्रिटिश सोचते थे जो उनके अकॉर्डिंग सही था उन्होंने लिखा, बट एक्चुअल में क्या था उस ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. नाउ आंसर इज इंफॉर्मेशन इज असेंशियल फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ अ टाइम विच कैन बी गैदर फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. जो भी असेंशियल चीज़ें होती है हिस्ट्री को लिखने के लिए जो अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है. अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन द आर्चीव्स, आर्चीव जो लाइब्रेरीज है ना, हिस्टोरियंस गैदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, डायरीज ऑफ द पीपल, अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड बुकलेट्स एक्सेट्रा. ये हमने अदर रिलायबल सोर्सेज का क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड है. यानी कि उन रिसोर्सेज के अलावा कई सारे और रिसोर्सेज थे, आर्चीव्स, लाइब्रेरीज जो है, म्यूज़ियम्स हैं, हिस्टोरियन जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, डायरीज़ जो थी फेमस पर्सन्स की, पिलग्रिम्स जो थे, पिलग्रिम्स कौन होते हैं जो धार्मिक यात्राएं करते हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी, ऑटोबायोग्राफीज़ जो आत्मकथाएं लिखी गई है फेमस पर्सनालिटीज़ ने, तो उससे भी कई सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन क्या की गई, कलेक्ट की गई. इंफॉर्मेशन फाउंड in the newspaper is varied based on the incident that have happened across the country. अब जो भी इंफॉर्मेशन मिली न्यूज़पेपर से, जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुए, घटनाएं हुई ऑल ओवर द कंट्री में, वेयर इज़ द पुलिस रिपोर्ट आर लिमिटेड एंड लोकलाइज. लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन पुलिस रिपोर्ट में नहीं थी, ना ही उसे लोकलाइज किया गया, लोगों को बताया गया. बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट sometime the information historian get from police report is not as useful as from of the old newspaper. क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन थी हिस्टोरियन के पास, यानी पुलिस रिपोर्ट जो है वो उनके लिए उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं थी. However, for any incidents, the newspaper may not quote all the reasons behind this and the based as per the thinking of the reporter
while in the police record we could find some evidence for an incident and the unbased report. अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें अलग थी, पुलिस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें अलग थी, हिस्टोरियन ने कोई चीज़ें अलग बताई। यहाँ पे सभी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो पुलिस के लिए जो बहुत सही चीज़ें थी या उनके लिए जो काम की थी उसे उन्होंने रिकॉर्ड किया। अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, उनके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी उसने उसे पब्लिश किया। हिस्टोरियन की बात करते तो उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी जो उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। यानी इम्पोर्टेंस सभी की थी और अपनी अपनी ज़र में सब ने अपने अपने पार्ट को लिखा। इसलिए कई सारे जो ओल्ड न्यूज़पेपर है या पुलिस रिपोर्ट है उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस पाया जाता है पर्टिकुलर किसी इशू को लेके। सो दिस इज़ योर NCERT बेस्ड क्वेश्चन। आई थिंक you all have cleared this question answers. Do it on your notebook and learn it also. Thank you, students.